bad end. Whether it may be of a civilization, organization, society, material life, spiritual life, all efforts towards any kind of realization whatsoever human mind can conceive of, everything ended in the end. Here, there are few points which might be seen as the reason behind things ending badly. So, firstly, effort. Human effort is always limited. Even if we achieve something, it's limited. And whatever is limited, it's supposed to end at a period of time. Something which has not taken place naturally tends to end after a period of time. Second point is, as Sri Aurobindo says in Thoughts and Aphorism, that ego was the helper, ego is the bar. Or the reason was the helper, reason is the bar. That is, these achievements and progress became bar in the progress because these achievements were not under the control of higher truths and values. Human effort is needed for the progressive evolution of individual, and then it should be eliminated through a conscious inner guide and help. Third point is that perfection. Perfection has no end. That is, even if man conceives that he has reached a point of perfection, but in the wider scope of things, that perfection of his is very limited. So the gist of all is this, that until everything is achieved and realized, nothing is really realized. This ultimate realization can happen only in the light of supramental consciousness, where things are transformed and mastered. To give this message, Mother and Sri Aurobindo descended here that now the time has come when things no longer will end badly. So, एक और point था कि whatever we call as success and victory is a human definition of success. As Mother says in the next para, that these falls have been because there has had to be a greater success and achievement than the earlier ones. So these must be broken in order to make greater progress. Since human mind is limited and timid, it does not see the vastness of things. So he perceives success ending with failures. So there was another point in the last discussion about universal things and divine things. So what is the difference between the two? So a universal thing is a part of a divine thing. That's a one part of a integral thing. और एक और point था, since being a part of the universal consciousness and movement, which is a common way of outlook, we perceive that things tend to end badly. Unless we rise above this universal consciousness, we will perceive things as they are. So मेरा question है, now how can we understand the mechanism of divine working and the universal working? यूनिवर्सल जो वर्किंग है उसको तो समझने के लिए एक तो अपने होराइजन से, अपनी कॉन्शियसनेस के, वो श्री अरविंद को हम जितना ही पढ़ते हैं वो हमको धीरे 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 ये खोलते जाते हैं कि वर्किंग किस तरीके की है। श्री अरविंद के अलावा तो इतना वास्ट विजन कोई देता ही नहीं है। जब हम उनकी चेतना में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं तो हमको ये दिखना शुरू होता है कि वर्किंग है। जैसे पहली बार ये विचार हमको तो आया है कि इस तरीके की कोई चीज़ भी है, तो हम इनको जैसे जैसे प्रवेश देते रहेंगे इन वर्किंग को, तो हम भी उनका एक पार्ट बनते जाएंगे, क्योंकि वास्तव में तो हमारी चेतना जितनी खुलेगी उतनी हम इस वर्किंग को देख पाएंगे। इसका तुरंत में और कोई तरीका नहीं है वास्ट होने का, क्योंकि ऑलरेडी अपने डीप डाउन हम वास्तव में यूनिवर्सल और इन चीज़ों के पार्ट हैं, पर उस बारे में सचेतन नहीं है। उसको सचेतन करने की क्रिया जब श्री अरविंद के माँ के हम शब्द पढ़ते हैं तो उसके द्वारा हम इसकी तुरंत में, ये हमारे लिए यही तरीका है फिलहाल। और जो डिवाइन चीज़ें हैं वो आपकी सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आप खुद भी अपने मूल सत्ता में तो वही हो। अब हम इस कौन सी सत्ता को ज़्यादा स्थान दे रहे हैं वो वाली वर्किंग हो रही है। अभी तो वाइटल को है, फिजिकल को है, हम कौन सी चीज़ को ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं उसकी वर्किंग जो है ज़्यादा प्रबल होती जाती है।
डिवाइन चीज़ों के लिए अब ये धीरे धीरे मैकेनिज्म हम इस पे ड्वेल करना शुरू करेंगे, माँ के शब्दों पे, अंदर से उसके लिए एस्पिरेशन हमारी रहेगी। जो चीज़ें उस एस्पिरेशन के साथ तारतम्य में नहीं है उनको धीरे धीरे हमको हटाना पड़ेगा, तो ये वर्किंग हमारे अंदर चालू होगी। तो हम इसको कंटिन्यूअस और इसके अंदर जाने की कोशिश करें, तब अपने आप ये वर्किंग चालू होगी। भाई अपन उसके लिए एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस बीज के लिए कि वो प्रस्फुटित हो, उस बीज के लिए चारों तरफ कि उसको पानी देना है, पौधे को उसको एक वातावरण प्रोवाइड करना है। तो उसी के लिए वास्तव में तो अपना ये प्रयास है, उसी चीज़ के लिए प्रयास है ये कि एक वातावरण इस तरीके का बन पाए कि वो वर्किंग हमारे अंदर संभव हो पाए। हम उसकी तो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ सेंस समझ में आ रहा हैं? ये जो लिखा था इसका कुछ मतलब भी बन रहा था। नहीं, इसको एक बार रखो, फिर अपन इसको फिर थोड़े दिन बाद में देखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। जैसे वो एक आई साइट शुरू में चेक करते हैं वहाँ, और फिर वो कह देते हैं आपको इतना नज़र आ रहा है, फिर वो 20 दिन एक्सरसाइज करवा के कहते हैं अब कितना नज़र आ रहा है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम 20 दिन या 10 क्लास बाद में देखेंगे कि अब ये कैसा लगता है, फिर दोबारा अपन ट्राई करके देख लेंगे, फिर अपन कंपेयर कर लेंगे कि क्या हुआ इसके अंदर। क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ पिछली बार वाली कोई बात पूछी जा सकती है क्या? जरूर जरूर। जैसे कि उसमें था कि हर कोई जानता है कि जिन्होंने अपने जीवन में महान सफलताएं प्राप्त की हैं, पर हाँ उनका अंत दुखांत रहा। हाँ तो इस विषय में जैसे कि मैं श्री अरविंद के विषय में सोच रहा था कि महान सफलताएं पाने के, तो क्या इसमें कैसे ये दुखांत तो नहीं रहा? क्या कहना चाहती है माँ? हाँ, पर देखिए इसमें पर्सनल स्तर के ऊपर तो वास्तव में वो श्री अरविंद कहते हैं कि अगर डिवाइन को फेल होने के अंदर अगर उसकी सफलता है, तो उसको, जिसको हम मानव चेतना के अंदर सफलता असफलता कहते हैं, वो प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक नहीं है। कई बार खेल के अंदर हम देखते हैं कि अपने बच्चे के साथ हम खेल रहे हैं, हमको हारने में कितना आनंद आता है उसके साथ, बच्चे को जीतने देने के अंदर हमको कितनी खुशी होती है। तो वास्तव में तो उसको खुश करके आपने जो जीत हासिल करी है, आप अपने बच्चे से जीत के खुश थोड़ी होते हो, बच्चे को जिता के खुश होते हो। तो तुरंत पहली बात तो सफलता असफलता का जो जो हमारा मापदंड है वो मानवीय मापदंड है। एक चीज तो हमको हमेशा ये माननी चाहिए। दूसरे, इसीलिए श्री अरविंद और माँ का सारा प्रयास जो अतिमानस को यहाँ उतार लाने का प्रयास है, वो वास्तव में, क्योंकि अगले पृष्ठ के ऊपर ही जो फुटनोट के अंदर उन्होंने लिखा है कि जब तक धरती के ऊपर मृत्यु है, अज्ञान है, और वो बेसिकली इनकॉन्शियंस और सबकॉन्शियंस के कारण है, उसका जब तक यहाँ बोलबाला है तब तक चीज़ों का वास्तव में दुखांत ही होगा उस तरीके से। इसलिए हाँ, श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि डिवाइन अपना एक काम करने आता है, वो काम वो संसिद्ध करता है और वो सचेतन होता है इस बारे में, क्योंकि उसको हमको कोई चीज प्रूफ नहीं करनी ना कि वो सफल हुआ या न सफल हुआ, एक चीज। दूसरे, हमारे पास क्या मापदंड है कि हम ये मापें कि श्री अरविंद सफल हुए या न सफल हुए? ये तो खुद श्री अरविंद या माँ ही इस चीज का मापदंड कर सकते हैं। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो चीज करने आए हैं वो तो परम पुरुष की निर्णायक क्रिया है, वो तो डिसाइसिव एक्शन कह रहे हैं, डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। श्री अरविंद का जो एक्शन है वो ये नहीं कि वो कोई अवतार हैं, वो तो मानो परम पुरुष की एक खुद स्वयं यहाँ के क्रिया कर रहा है। पर अब हम इस बारे में कैसे सचेतन हों? वो तो ये कह रहे हैं कि सुप्रामेंटल का मैनिफेस्टेशन हो गया, अब निश्चित रूप से हो गया। पर सुप्रामेंटल के समय उन्होंने कहा कि 1956 में हुआ, 29 फरवरी को प्लेग्राउंड के अंदर। अब प्लेग्राउंड के अंदर और आश्रम में भी सोचिए कितने जने उस समय थे, उनमें से किस किस को अनुभव हुआ उसका तो पूरा वृत्तांत उन्होंने दे रखा है। एक का नाम देते हैं कि वो तो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, उनको थोड़ा आभास हुआ कि ऐसा हुआ, या कुछ एक आध साधक ही थे जिनको ये महसूस हुआ, बाकी वो कह रहे प्लेग्राउंड में हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। अब ठीक है, उन्होंने माँ ने कहा कि अनाउंस कर दो, तो सबने कहा हमको भी कुछ महसूस हुआ। अब अभी कोई अगर कोई ये कह दे कि हाँ कल भी
डिसेंट हुआ था सुपरामेंटल, हम कहते हैं हाँ हमको भी कुछ महसूस हुआ था अच्छा सा। अब ये तो थोड़ी ऐसे कोई, अब वहां उस समय पत्थर भी रहे होंगे, चेयर भी रही होगी, भाई सारी फिजिकल चीजें भी रही होंगी ना प्लेग्राउंड के अंदर, क्या उनको कुछ महसूस हुआ होगा? मैं तो कह रहा हूं जो साधक थे उनको ही महसूस नहीं हुआ। तो ये तो बड़ी एक आंतरिक चीज है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या पॉइंट मेक कर रहा हूं इसके अंदर? जी ये जी बहुत गहन सब्जेक्टिव चीज है। हाँ, हम जिस रूप में देखते हैं वास्तव में कितना वेल मीनिंग तरीके से हम जीवन में शुरू करते हैं और सब मटिया मेट हो जाता है, उस दृष्टिकोण से हम कहते हैं कि बड़े दुखांत होती है चीजें। इतना प्रेम भाव से हम चलते हैं, किसी के लिए कोई चीज लेके जाते हैं, पता चला अरे ये क्या हुआ, हम तो इतना खुश होके इसके लिए आए थे, देखो कितना लड़ाई झगड़े में भी चीजें खत्म होती हैं रात दिन, तो हम देखते हैं। देखिए एक तो इसका मेन कारण मनुष्य जाति के स्तर के ऊपर तो ये है कि जब तक हम ईगो के स्तर पे या एक छोटे दायरे में हम व्यवहार करते हैं तब तक ये समस्याएं हैं ही हैं, वो दुखांत ही हैं। जब हम हृदय के स्तर के ऊपर भी, परिवार में एक अनुशासन क्यों रह पाता है? क्योंकि वहां कोई डेमोक्रेसी हम वैसे लागू नहीं कर रहे। अगर वोट लेने शुरू करें परिवार में, सोचो क्या होगा। वो हृदय के स्तर के ऊपर है। एक अपंग भी अपना भाई है तो भी अपन पूरे जीवन कोई दिक्कत नहीं होती, उसको साथ में रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम एक मैं की चेतना से हमने थोड़ा सा हार्ट के ऊपर स्टैंड लिया। तो वैसे ही धीरे धीरे जैसे हम और अंदर स्टैंड लेते हैं तो जो ये सारे हमारे पैरामीटर्स हैं कि ये सफलता असफलता ये सब बदलती जाती है। मेरे ख्याल से कुछ कुछ इसमें से आप कुछ देख पाते होंगे। जी जी। और कोई बात है? नहीं भैया। हाँ, तो ये सफलता असफलता, अगर सुप्रामेंटल का भी आप उदाहरण, आप इसके ऊपर चिंतन करना कि सुप्रामेंटल का अवतरण हुआ तो लोग तो मौजूद थे ना वहां प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड में कितने सारे लोग थे, कितनों ने कहा है वो सुनो। वो तो एक जना तो था ही नहीं जिसने ये कहा है, उसको तो अनुभव हुआ था, क्योंकि उसने माँ को कह रखा था एक साधक ने कि जब हो तो मेरे को जरूर बताना। तो उसको एक आभास हुआ जब वो ट्रेवल कर रहा था कि वो हो हाँ कुछ हुआ। तब उस माँ ने तो अनाउंस तो बाद में किया था ना कि हाँ सबको अनाउंस कर दो कि सुप्रामेंटल का मैनिफेस्टेशन हो चुका है। और उस टाइम तो मिट्टी भी थी, दीवारें भी थी, सारी फिजिकल चीजें थी। उन्होंने कितना क्या रिसीव किया होगा उसको, या जितने साधक बैठे थे उन्होंने क्या रिसीव किया होगा। भी जगदम्बा स्वयं उनके सामने थी, क्या रिसीव किया होगा उन्होंने उनको भी। श्री अरविंद खुद उनके सामने थे। और उनके पत्राचार पढ़ो, लोग किस किस तरीके के पत्राचार कर रहे हैं श्री अरविंद के साथ। जब परम पुरुष सामने खुद बैठे हो तो भी दृष्टि नहीं हो तो क्या कर लो आप। समस्या परम पुरुष की थोड़ी है, आपकी दृष्टि की है। अभी भी परम पुरुष, मेरी दृष्टि खुल जाए तो परम पुरुष सामने ही बैठा है, उसमें दिक्कत कहां हो रही है? प्रॉब्लम तो दृष्टि की चल रही है। मां खुद साक्षात वहां सामने बैठी है, और उसमें जिस जिस तरीके के पत्र लोगों ने लिखे हैं, दमदर में पढ़ो। लोग ऐसी शिकायतें कर रहे हैं ध्यान के समय या प्रणाम के समय, कुछ लोग तो मां के चरणों को खरोंच लेते थे ये मान के कि जगदम्बा है, देखते हैं इनके खून आता है या नहीं आता है। अब सोचो, पांव सूज जाते थे बैठे बैठे। तो फिर तो हम क्या सोच रहे हैं इस विषय में? तो प्रॉब्लम उनकी साइड से नहीं है, प्रॉब्लम तो अपने ये खुले थोड़ा सा तो है ना। प्रॉब्लम उनकी साइड से नहीं है, प्रॉब्लम इस साइड से है। और उसी का तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको रिसीव कर पाएं, उसको ग्रहण कर पाएं। भाई इस चेतना से थोड़े से बाहर निकले तो वो प्रवेश करे, हालांकि उनकी कृपा से ही होगा वो। आगे चलें इसमें, या और कोई बात है? ये आगे चल सकते हैं। हाँ, हाँ, किसी की नंदकिशोर अंकल या विनीता की कोई बात हो तो पूछ लें। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। नंदकिशोर अंकल या विनीता की बात हो तो पूछ। नंदकिशोर अंकल या विनीता की, विनीता को कुछ पूछना बोल रहे हैं क्या? आगे फिर आगे कोई कुछ पूछ रहा है तो आगे चलें क्या? हाँ आगे चलते हैं, क्योंकि 10:30 तो ऑलरेडी हो गए अपने को। तो चलो। हाँ,
कौन पढ़ेगा? हाँ, हमने ट्रू गाइड पढ़ लिया था, तो इसके आगे है द इनफ ट्रू थिंग्स इन चिल्ड्रन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। नहीं, ये अपन ने कहाँ किया था? द ट्रू गाइड, द इनर गाइड। नहीं, इनर गाइड शुरू किया था, यही मैं पूछ रही हूँ कि ये पढ़ूं फिर से? हाँ, ट्रू गाइड इनर गाइड ही अपन करेंगे आज तो। अच्छा, तो द ट्रू गाइड द इनर वो गाइड फुटनोट पढ़ा था प्राजिता दीदी, फर्स्ट का फुटनोट पढ़ा था। हाँ, ये टाइटल अपन ने किया पूरा नहीं। कंप्लीट कर लिया था, थिंग्स ऑलवेज इन बैटरी। हाँ, एग्जैक्टली। और ठीक है, ट्रू गाइड पर there is another quality which must be cultivated in a child from a very young age. That is the feeling of uneasiness, of a moral disbalance, which it feels when it has done certain things, not because it has been told not to do them, not because it fears punishment, but spontaneously. For example, a child who hurt his comrade through mischief, if it is in its normal nature state, will experience uneasiness, a grief deep in its being, because what it has done is contrary to the intent. आगे पढ़ूं? हाँ, इसको एक बार पूरा पढ़ लो, फिर अपन इसकी बात कर लेते हैं। या मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं शुरू से शुरू करता हूँ और इसका एटलीस्ट मैं मीनिंग तुमको बताता जाता हूँ पूरे का। हिंदी तो शायद तुम लोगों के पास, सबके पास है इसकी। हिंदी, हाँ हिंदी है। मातृवाणी से तुमने देखी? हाँ, मातृवाणी से तुमने ली थी, हालांकि वो आधार ठीक है, पर मैं इसको इससे मैच कर रहा था, तो उसका कुछ 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 इसमें थोड़ा मेरे को अंतर नजर आता है। एनीहाउ उसको आधार मान के हम इसमें चल सकते हैं। देयर इज अनदर क्वालिटी विच मस्ट बी कल्टिवेटेड इन ए चाइल्ड फ्रॉम अ वेरी यंग एज। बहुत छोटी ही उम्र से बच्चे के अंदर एक और क्वालिटी है, एक और गुण है, जिसको विकास करना या जिसको विकसित करना जरूरी है, आवश्यक है। दैट इज द फीलिंग ऑफ अनईजीनेस। मतलब अंदर से अनईजी होने की जो फीलिंग है, ऑफ ए मॉरल डिसबैलेंस, which it feels when it has done certain things, not because it has been told not to do them, not because it fears punishment, but spontaneously। मतलब सहज रूप से उसको अंदर से और तकलीफ होती है कोई इस तरीके का काम कर ले जो उसको नहीं करना चाहिए। कोई मोरल नोशन के हिसाब से नहीं कि वो हो ये मोरल, समाज में ये नैतिक ये आधार है, उससे विपरीत मैंने कोई चीज कर ली, इसलिए नहीं, क्योंकि उसका कॉन्ट्ररी टू इनर ट्रूथ, जो आंतरिक उसके सत्ता का जो सत्य है, उसके विपरीत अगर कोई वो चीज करे तो उसको थोड़ी सी तकलीफ होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चे को, जैसे एक एग्जाम्पल तो इन्होंने दिया, फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड हु हर्ट्स इट्स कॉमरेड, अपने साथी को बदमाशी के अंदर अगर वो कर दे, उसको चोट पहुंचा दे, इफ इट इज इन इट्स नॉर्मल नेचुरल स्टेट, अगर वो अपनी नॉर्मल स्टेट में होगा बच्चा, तो उसको बड़ी अनईजीनेस की ये मैंने गलत काम किया, उसको ऑटोमेटिकली अंदर से गहराई के अंदर एक तकलीफ महसूस होगी, बिकॉज वॉट इट हैज डन इज कॉन्ट्ररी टू इट्स इनर ट्रूथ। तो उसका जो आंतरिक सत्य है उसमें उसको, क्योंकि एक व्यवधान इस तरीके का होगा तो उसको तकलीफ होगी। आपके शरीर के अंदर अगर कोई चोट पहुंचाता है, कोई पिन चुभोता है, कोई तलवार से वार करता है, तो जैसे आपको दर्द होता है, वैसे ही आपका बीइंग जो ट्रूथ का बीइंग है, आप क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हो, वो तो आपका एक छोटा दृष्टिकोण है देखने का, पर साइकोलॉजिकली हम एक गहरे अगर हार्मनी में रहते हैं और उसमें कोई ब्रीच होती है, जैसे कितना अपने को अजीब लगता है, किसी ने हमारे साथ कोई प्रॉमिस किया या मैंने किसी के साथ प्रॉमिस किया और उसको पूरा नहीं कर पाए, या किसी का भाग है, मेरे को किसी ने कहा कि ये मैं आपको 2 चीज देता हूं, एक आपके लिए है ये
कोई डिश है और ये आपके फ्रेंड के लिए है, अब मैं दोनों को अगर मैं उस फ्रेंड से शेयर किए बिना अकेले खा जाऊं तो वो एक अंदर से अनईजीनेस होगा कि ये मैंने गलत काम किया। या हमको कोई भी चीज़ देने में जो आनंद आता है, खुद लेने में उससे उतना आनंद नहीं आता है। हमारे बीइंग का जो फुलफिलमेंट है वो जितना ही हम हमारे इनर ट्रूथ के तरफ जाते हैं उतना ज़्यादा फुलफिलमेंट होता है। फॉर इन स्पाइट ऑफ ऑल टीचिंग्स, in spite of all that thought can think, there is something in the depths which has a feeling of a perfection, a greatness, a truth, and is painfully contradicted by all the movements opposing this truth. आपके अंदर एक परफेक्शन का, कि ये पूर्णता होनी चाहिए, उस पूर्णता में अगर आपको ये लगे हो इसके तो ये कमी है, या एक ग्रेटनेस, महानता, कोई महान व्यक्ति है और उसका पता चले अरे ये तो इसके ऐसे कर्म है, तो आपको बड़ा अंदर से अजीब लगता है। ए ट्रूथ एंड इट्स पेनफुली कॉन्ट्राडिक्टेड, आपको तकलीफ होती है जब उसमें किसी तरीके का व्यवधान आता है या उस ट्रूथ में किसी प्रकार की ब्रीच होती है। इफ ए चाइल्ड हैज नॉट बीन स्पॉइल्ड बाय इट्स मिलियर, बाय डिप्लोरेबल एग्जाम्पल्स, कि आपके परिवेश के द्वारा अगर आप बिगाड़ नहीं दिए गए हो तो अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर स्पॉन्टेनियसली, सहज रूप से अगर आप अपने इनर ट्रूथ से विरुद्ध कोई काम करते हो तो आपको अंदर से तकलीफ महसूस होगी। विदाउट इट्स बीइंग टोल्ड एनीथिंग, इट विल फील एन अनईजीनेस व्हेन इट हैज डन समथिंग अगेंस्ट द ट्रूथ ऑफ इट्स बीइंग, एंड इट इज एग्जैक्टली अपॉन दिस दैट लेटर इट्स एफर्ट फॉर प्रोग्रेस मस्ट बी फाउंडेड। तो बचपन से ही अगर उसमें ये चीज़ दे दी जाए, ये सिखा दी जाए कि जब भी अपने जो इनर ट्रूथ है उससे कॉन्ट्रेरी अगर वो कोई काम करता है तो ये उसको तकलीफ पैदा करेगा, तो पूरे जीवन के अंदर सोचो कि कितना एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा कि आप अपने सत्ता के सत्य के अनुकूल ही काम करोगे, उससे प्रतिकूल काम नहीं करोगे। इसके जो मायने निकलते हैं वो प्रश्न हम बाद में टैकल करेंगे, पहले मैं इसको खाली पैराग्राफ का अर्थ समझा देता हूं। फॉर इफ यू वांट टू फाइंड वन टीचिंग, वन डॉक्ट्रिन अपॉन विच टू बेस योर प्रोग्रेस, कि अगर कोई तुम ये मांगो कि मेरे को खाली बस एक ये टीचिंग दे दो जिसके ऊपर मैं अपना जो प्रोग्रेस है, मेरा जो विकास है, उसका कोई एक मेरे को तो टीचिंग बता दो बस, तो यू विल नेवर फाइंड एनीथिंग। तो तुम एक कोई भी टीचिंग के सहारे जीवन भर नहीं चल सकते। जैसे आप कह दो मेरे को तो एक बता दो बस कि सड़क के ऊपर सीधे चलना है या लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो आपका तो ऐसे नहीं होता। जिस तरीके की सड़क आएगी आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा। वैसे जीवन में आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को एक कोई भी सूत्र दे दो, एक कोई भी फॉर्मूला दे दो और मैं उसके हिसाब से चलता रहूं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पर ये आप में अगर तैयार है, ये इनर ट्रूथ के लिए आपकी जो आप उसके कॉन्सोनेंस में हो, आप उससे समस्वर हो, तो आप जीवन भर ऐसी सब चीज़ों से बचते जाओगे जो आपको अनईजीनेस में डालेगी। और अनईजीनेस क्यों होगी? क्योंकि वो इनर ट्रूथ के खिलाफ होगी। तो आप ऐसा कोई काम करेंगे नहीं अगर अनईजीनेस को आपने कल्टीवेट कर रखा है तो। Accordance with the climate, the age, the civilization, the teaching given is quite conflicting, क्योंकि हर क्लाइमेट में, एज में, सिविलाइजेशन में जो टीचिंग्स हैं वो अलग अलग तरीके की होती है। इसलिए आप कहो मैं एक के सहारे अपने जीवन भर में चलता रहूं, ऐसी कोई टीचिंग आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि अलग अलग समाज में आपको कंडक्ट के अलग अलग तरीके हैं। अब बाढ़ आ रही है उस टाइम आपकी, सपोज बिहार में अब सब इस टाइम बाढ़ आ रही है, आप कहो कि ये इस तरीके से जीवन को चलना चाहिए, पर आपकी स्थिति अलग है। जहां आप बर्फ में हो वहां आप कह दो मेरे को तो ऐसा कोई एक फॉर्मूला है जीने का, वहां बर्फ में स्थितियां अलग हैं। आप इक्वेटर के पास हो तो आपकी लाइफ की स्टाइल अलग तरीके की, आप पहाड़ों पे हो अलग तरीके की है। तो आप कहते हो भी जैसा परिवेश होगा, जैसी आपकी आंतरिक स्थिति होगी, उनके हिसाब से ही कि कैसा समय है, सामने व्यक्ति कौन है। अब कोई बहुत कमजोर व्यक्ति है, आप उससे ऐसी कोई आशा नहीं या डिमांड ऐसी नहीं करेंगे जो उसकी शक्ति से बहुत ज्यादा हो। आप उससे वही डिमांड या अपेक्षा रखना चाहेंगे जो उसके अनुकूल हो। आप किसी पहलवान से जो आशा करते हैं या अपेक्षा करते हैं वो किसी छोटे बच्चे से अपेक्षा नहीं कर सकते।
तो कोई भी एक नियम व्यक्तियों के विषय में या किसी भी चीज के विषय में एक नियम कभी नहीं हो सकता। When one person says this is good, another will say no, this is bad, and with the same logic, the same persuasive force. अब किसी को नमक की जरूरत है और किसी को बीपी अगर ज्यादा तेज हो रहा है उसको कहते नहीं नहीं तेरे को नमक नहीं खाना चाहिए। किसी को हो सकता है कि शरीर के अंदर एनर्जी के लिए शुगर की या ग्लूकोज की जरूरत हो और किसी को कहते नहीं तेरे लिए जहर है ये करना। तो जब शरीर के अंदर भी कोई एक तरीके से नहीं काम कर सकता, सब शरीरों के गुण धर्म अलग है, आपका जो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसका गुण धर्म अलग है, जिस राष्ट्र से, जिस सभ्यता से, जिस समाज से, जिस जाति से, या जो आपका आंतरिक आउटलुक है, आपने माँ और श्री अरविंद को वर्ण किया है। अब कोई रमण महर्षि का वर्ण करता है क्योंकि उसकी अंतरात्मा वो एक दूसरी लाइन चूज करती है, तो उसको उनको गुरु रूप में वर्ण करके वो जो कहते हैं वो उसके लिए उसकी लाइन है। अब वो माँ और श्री अरविंद को फॉलो करे ये क्या जरूरी है? या कोई और इतने सारे जिसकी आत्मा को ये लगता है कि मेरा गुरु ये है, किसी का इष्ट जो है गणेश जी हो सकते हैं, किसी के इष्ट हैं राम हो सकते हैं, तो सबका अपना अपना आंतरिक, बाहरी, साइकोलॉजिकल, मानसिक, सब तरीके का जो फ्रेमवर्क है, जिस तरीके का उसका विकास है उस तरीके से उसके ऊपर चीजें लागू होंगी। कोई एक ही लकड़ी से सारों को नहीं हाँका जा सकता। Consequently, it is not upon this that one can build. Religion has always tried to establish a dogma. धर्म ने सदा ही कोई एक कठोर नियम बनाने का प्रयास किया है, and it will tell you that if you conform to the dogma, कि आप अगर उस लकड़ी के हिसाब से या जो डोगमा उसने जो एक सिद्धांत बना दिया उस तरीके से चलते हो तो आप सत्य में हो। कि जो कुरान में कह रखा है अगर आप उसको नहीं मानते तो आपके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे, या जो क्राइस्ट ने कह रखा है अगर आप उसको नहीं मानते तो आपके खिलाफ जो है वो कह देंगे नहीं नहीं। और पुराने समय के अंदर तो उसको ये जला डालना, फिजिकली टॉर्चर करना, अभी भी देखो लोग इस्लाम में या जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं उनमें किस तरीके का डोगमाज हैं। इस्कॉन वाले भी हैं वो एकदम इंटॉलरेंट हैं। कृष्ण के अलावा अगर उनको कह दो कि इस तरीके के भी देवता हैं या कोई और भी गुरु हैं तो वो बिल्कुल इंटॉलरेंट हैं उस बारे में। यू आर इन द ट्रूथ एंड इफ यू डोंट यू आर इन द फॉल्सहुड, बट ऑल दिस हैज नेवर लेड टू एनीथिंग एंड हैज ओनली क्रिएटेड कंफ्यूजन। तो इतना जो विश्व में कंफ्यूजन है, भारतीय संस्कृति ने इस बारे में क्या किया वो मैं तुमको इसमें बताऊंगा, पर एक एक अपन धीरे धीरे इसको खोलेंगे। देयर इज ओनली वन ट्रू गाइड। तो इसलिए एक नियम, एक सच्चा आपका गाइड कि आपको जीवन में अब गाइड किस तरीके से, कौन आपको रास्ते के ऊपर बताएगा कि अब लेफ्ट मुड़ो, अब राइट मुड़ो, अब इसको दान देना चाहिए, अब दान नहीं देना चाहिए, इस व्यक्ति को आपको हेल्प करनी चाहिए, इसको हेल्प नहीं करनी चाहिए। जैसे माँ के पास कितनी तरीके की पुकार आती थी। कोई बीमार है तो किसी को तो माँ स्वस्थ कर देती थी, किसी की आत्मा की पुकार इस तरीके की है तो उसको फिर बाद के अंदर मृत्यु के अंदर हेल्प करती थी कि उसको पेनलेस, क्योंकि पेन जो है उसका कम करके उसकी आत्मा की ये चॉइस है कि उसको जाना जरूरी है, तो फिर उसको रखने से क्या फायदा हुआ। इसलिए माँ उसको उस तरीके से हेल्प करती थी। अब उनको, माँ को तो विजन था कि किसको क्या करना चाहिए, हमको ये विजन होता नहीं है। तो देयर इज ओनली वन ट्रू गाइड, दैट इज द इनर गाइड हु डज नॉट पास थ्रू द मेंटल कॉन्शियसनेस। वो हमारी बुद्धि के थ्रू पास नहीं करता, वो एक बहुत आंतरिक चीज है। और हमारे जीवन में हम वास्तव में देखें तो 20 तरीके की चीज है, अंदर से एक चीज बोलती है नहीं ये वाली करेंगे। 10 जगह आपको जाना होता है, आप एक का निर्णय करते हो, कहीं से अंदर से आपको लगता नहीं मेरे को ये वाला काम करना है। 20 चीजों की आप चयन की आपको सुविधा है तो उसमें से एक चीज आप चयन करते हो। साइकोलॉजिकली भी आपको चयन करना ही करना पड़ता है जीवन के अंदर, भी चयन तो रात दिन आपको करना पड़ता है। इस तरीके से वो एक इनर गाइड जितना ही आपका प्रबल होता जाता है, who does not pass through the mental consciousness, वो आपके लिए सच्चा चयन, जो सच्चा विवेक, वो आपके पैदा कर देगा। Naturally, if a child gets a disastrous education, it will try ever harder to extinguish within itself this little true thing. तो अगर बच्चे को एक बड़ी खराब तरीके की, डिजास्ट्रस, विध्वंसक अगर उसको शिक्षा मिलती है, जैसा कि आम तरीके से मिलती ही है,
भी सब जगह वही शिक्षा तो मिल रही है। तो उसमें क्या होगा कि वो कोशिश उसकी ये होगी कि हमारे अंदर ये जो ट्रू थिंग है, जो एक छोटी सी अग्नि है जो अंदर एक जो प्रज्वलित हो रही है, कैसे भी उसको मार डालें, उसका खाली पूरे समाज का, परिवार का, परिवेश का और खुद उस एजुकेशन का, जो भी उसके चारों तरफ, उनकी कोशिश ये है कि वो जो अंदर फायर है, आपके जो एस्पिरेशन है, उसको मार डालें। एंड समटाइम्स इट सक्सीड सो वेल, और कई बार ये मार डालने में वो इतना सफल हो जाते हैं दैट इट लूजेज ऑल कॉन्टेक्ट विथ इट। तो आपकी चेतना, जो आंतरिक चेतना है, आपकी जो अंतरात्मा है, उससे आप बड़े सफल रूप से अपना सारा कॉन्टेक्ट खो बैठते हो। तो आप अपनी सत्ता के, सत्य के खिलाफ भी सारे दिन काम करते रहते हो, तो कोई अनइजीनेस महसूस नहीं होती। आप सारे दिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूठ बोलते रहते हो, आप ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहते हो, फिर अपने को लगता है भी अपने को तो तकलीफ नहीं हो रही है काम करने में। इनफैक्ट कि वो क्या होता होगा कि माँ की चेतना कैसे होती होगी, बड़ा आश्चर्य होता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे परिवेश ने और हमने खुद ने जो आंतरिक, जो हमारे जो आवाज़ है, जो ट्रू गाइड है, उसको बड़े सफल रूप से हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। एंड ऑल्सो द पावर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुड एंड ईविल, क्योंकि उसी के प्रकाश में भी प्रकाश आएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अंधेरे में आपको यही नहीं पता कि मैं कमरे में हूँ, हॉल में हूँ, कोई गैरेज में हूँ, मैं हूँ कहाँ। अगर बिल्कुल गहन अंधकार हो तो आपको यही नहीं पता चलता आप हो कहाँ, और चारों तरफ आपके चीज़ें क्या हैं। जैसे ही जीवन में कुछ प्रकाश आता है, और वो प्रकाश किससे आता है, इस संकल्प से कि माँ मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। या जैसे उसने कहा हमारे अंदर ये चेतना कैसे आएगी, तो अंदर से ये अगर अभीप्सा एक बार जागृत हो, वो एक वो थोड़ा सा प्रकाश है, वो आपको नज़दीक की, थोड़े दूर की, जितना तेज प्रकाश होगा उतनी दूर का फील्ड आपको दिखा देगा, और जितना क्षीण प्रकाश होगा पर एटलीस्ट कम से कम ये तो दिखाएगा कि आप कहाँ खड़े हो, आपको आसपास की चीज़ें दिखाएगा। और जैसे ही वो प्रकाश आएगा, आपके डिसर्नमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, जो विवेक बुद्धि है कि जीवन में ये करना चाहिए, सच्चा कर्म है ये करना चाहिए, वो आपके विवेक बुद्धि तुरंत आ जाएगी। तो गुड और इविल, क्योंकि अपने आप में गुड और इविल तो कोई चीज़ है ही नहीं, वो तो इस बारे में है कि इसके लिए क्या गुड है। अब किसी के प्रॉब्लम हो रही है, सपोज मतलब उसके बीपी बढ़ रहा है और मेरे को पता नहीं, और मैं उसको नमक खिलाए जा रहा हूँ, उसके लिए तो बिल्कुल ईविल व्यवहार हो गया ये। और जबकि जिसको जरूरत है उसके लिए गुड व्यवहार हो गया। तो व्यक्ति कौन है, किस स्थान के ऊपर है, देश काल और पात्र के हिसाब से ये निश्चय होगा कि गुड क्या है और ईविल क्या है, क्योंकि अपने आप में कोई भी गुड नहीं है और ईविल नहीं है। तो ये डिस्टिंग्विशिंग तब होगी जब आपके अंदर ये प्रकाश आएगा। ये ट्रू इनर गाइड है, वो आपको बताएगा भाई अब आप कह दो लेफ्ट जो रास्ते हैं वो सब ईविल हैं और जो राइट जो रास्ते हैं वो सारे गुड हैं, अब आप कभी गंतव्य तक पहुंच सकते हो क्या? और ये कितनी बचकानी सी बात लगती है कि ऐसा कोई भी गुड और ईविल नहीं है। गुड और ईविल तो हाँ प्रैक्टिकल में आपको चयन करना पड़ता है। तो चयन आप किस तरीके से करते हो? आप बीमार के लिए अगर दवाई लेने गए बाजार के अंदर, अब उन पैसों से आप कोई दूसरा काम करने लग जाओ या अपना समय किसी दूसरी चीज में व्यर्थ करने लग जाओ तो वो ईविल हो गया। पर जिस उद्देश्य से आप बाजार गए हो वो काम कर रहे हो तो वो गुड है। तो इसी तरीके से जीवन में आपने क्या उद्देश्य लिया है और वो उद्देश्य किस चेतना के प्रकाश में लिया है। अब कोई कहते मैंने तो उद्देश्य ये लिया है, वो तो रैंडमली जिसको आप प्रोफेशन फॉलो कर रहे हो वो उद्देश्य नहीं है आपका जीवन में, क्योंकि आपने कभी कॉन्शियसली सोचा ही नहीं कि मेरा उद्देश्य क्या है। इसलिए जो आप तुरंत में फॉलो कर रहे हो वो आपका उद्देश्य नहीं है, जो आपने सचेतन रूप से चयन किया है वो आपका उद्देश्य है। तो अगर आपने सचेतन चयन किया है, नहीं किया है, तो पहले तो अपने को एक ऐसी सत्ता, एक जो आंतरिक जो गाइड है, उसको ये पूछना चाहिए मैं कहाँ हूँ और मेरे को किस ओर चलना चाहिए। दैट इज वाई आई इंसिस्ट अपॉन दिस। इसीलिए माँ हमेशा ही इसके ऊपर इंसिस्ट करती है। एंड आई से दैट फ्रॉम देयर इन्फेंसी, अपने बिल्कुल बचपन से ही बच्चों को taught that there is an inner reality, कोई आंतरिक सत्य है within themselves, within the earth, within the universe, and that they, the earth and the universe, exist only as a function of this truth,
इस ट्रुथ के फंक्शन मतलब उसी के दायरे में ये सारे के सारे काम करते हैं। और एंड दैट इफ इट डिड नॉट एग्जिस्ट, अगर वो सत्य न एग्जिस्ट करता, उसका वजूद न होता, तो द चाइल्ड वुड नॉट लास्ट, तो वो जो बच्चा है या कोई भी चीज है, क्योंकि उसके पीछे एक सत्य है, डिवाइन का एक ट्रूथ है, इसलिए वो लास्ट कर रही है। अदरवाइज तो वो चीज कभी लास्ट कर ही नहीं सकती थी। वो क्या होती? डिसॉल्व इवन एज इट कम्स इनटू बीइंग। तो वो क्या होगी? डिसॉल्व, तिरोहित हो जाएगी। जैसे वो सत्ता में आई कि कोई चीज एग्जिस्टेंस में आई, तो वैसे ही वो डिसॉल्व हो जाएगी अगर वो सत्य नहीं है तो। एंड बिकॉज दिस इज द रियल बेसिस ऑफ द यूनिवर्स, नेचुरली इट इज दिस विच विल ट्रायम्फ। तो क्योंकि ये सत्य आपकी सत्ता का एक मूल चीज है जिस पे सारी चीज आधारित है, इसलिए हमेशा ही हम जो कहते हैं सत्यमेव जयते, तो सत्य की जीत होगी, इसमें बात ही क्या है? क्योंकि वो तो आधार है सब चीज का, और कोई दूसरी चीज तो आधार नहीं है ना। आपका शरीर है वो आधार नहीं है, आपकी आत्मा है वो आधार है, क्योंकि वो नए नए शरीर लेती है। शरीर आधार नहीं है, इसीलिए वो आता जाता रहता है। जो चीज आपका शरीर धारण करती है वो शाश्वत है, इसीलिए उसकी ट्रायम्फ हो सकती है। एंड ऑल दैट अपोजेस दिस कैनॉट एंड्योर एज लॉन्ग एज दिस डज, बिकॉज इट इज दैट। क्योंकि आपका जो आंतरिक सत्य है वो दैट, वो जो परमात्मा है, दैट जो परम पुरुष है, वो सत्य वही है, द इटर्नल थिंग विच इज एट द बेस ऑफ द यूनिवर्स। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कोर्स ऑफ गिविंग ए चाइल्ड फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस। तो बच्चे को हम कैसे बताएंगे? हालांकि बच्चे नहीं, हम तो ये खुद के लिए अपने लिए लागू करेंगे कि ये कोई उसको फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन, उसको कोई तत्व ज्ञान नहीं देना है। बच्चा कैसे समझेगा उसको? पर उसको सहज रूप से इतने प्रेम से उसको ये अंदर डाल देना है कि आप अपनी सत्ता के सत्य के विपरीत कोई चीज करते हो, आपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई काम किया, लालच के कारण कोई काम कर दिया, आपने किसी और को ठेस पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, तो आपको अंदर से एक अनईजीनेस महसूस होनी चाहिए कि नहीं, ये काम तो मैंने गलत किया। बट ही कुड वेरी वेल बी गिवन द फीलिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ इनर कंफर्ट। पर उसको फीलिंग में आप जरूर बता सकते हो, क्योंकि बच्चे को देखो हार्ट के थ्रू आप कन्वे कर सकते हो, तो उसको इनर कंफर्ट, जो आंतरिक सुख है, उसको वो दिखा सकते हो क्या है। आप किसी ऐसे संत के आश्रम में, किसी ऋषि के पास, जैसे माँ के पास लोग जाते थे, एक दृष्टि के अंदर वो पहचान जाते थे। कितने लोग जिन्होंने पहले ही दृष्टि के अंदर पहचान लिया और कभी जीवन में वापस गए ही नहीं, क्योंकि उनको एक अंदर से इतना सुकून ये महसूस हुआ कि इनकी आंखों में जो करुणा है और मेरे लिए जो प्यार है, मेरे लिए जो प्रेम है, वो माँ को जानता नहीं। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये सोच के गए कि यहाँ तो कोई चमत्कार तरीके की चीज है, तो मेरे को उसके बहकावे में नहीं आना है, और मैं बड़ा स्ट्रोंग हूँ साइकोलॉजिकली, तो मैं उनको प्रणाम भी करूंगा और फिर भी आ जाऊंगा, देखो मेरे कुछ नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग गए, पर जैसे ही उनकी आंखों के अंदर एक दृष्टिपात के अंदर उनको जो करुणा, जो प्रेम, जो शक्ति, जो दिव्यता जो बहती है उनके अंदर से, उसके सामने कोई चीज टिक थोड़ी सकती है। तो इसीलिए वो उदाहरण देते हैं कि राधा जी के सामने और किसी के सामने तो भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य चलता होगा, राधा जी के सामने तो कोई ऐश्वर्य चलता नहीं है, क्योंकि जो आपका प्रेम है, जो डिवाइन चीजें हैं, उनके सामने कोई बारी ये ऐश्वर्य है वो चलता नहीं है। तो इसलिए जो इनर कंफर्ट है, तुरंत उसको व्यक्ति या बच्चा वो पहचान जाता है, ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसको पूरी संतुष्टि उससे होती है। आप कितना भी अच्छे से अच्छा भोजन कर लो, या जो आपकी बारी डिमांड्स हैं वो कितनी भी पूरी कर लो, पर कुछ मोमेंट्स आपने ऐसे निश्चित सारों ने फील किए होंगे जिसमें वो सेटिस्फैक्शन किन्हीं भी कारणों से नहीं था। कितना गहरा सेटिस्फैक्शन आपको एक आंतरिक तुष्टि मिलती है जब आप पौंडीचेरी गए, वहां समाधि पे आपने प्रणाम किया, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिससे कोई बहुत ज्यादा आदान प्रदान भी नहीं हुआ, उसकी उपस्थिति मात्र आपको इतना प्रेम प्रदान करती है, इतना आपको अंदर से भर देती है कई चीजों से, जो आपको किसी भी कारण से बाहर या कितनी भी आप बारी सारे संसाधन से आप वो अर्जित नहीं कर सकते हो। तो जब आप एक बार आपको उस चीज का स्वाद मिल गया, अंदर से वो कंफर्ट आ गया, आपको दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये ऐसा मत करना। ये आपको कोई बहुत बहुत ही स्वादिष्ट कोई व्यंजन खिलाया जाए,
अब आपको कहने की जरूरत थोड़ी है कि इसको आप चोरी छिपे भी मत खाना, आप तो उसको भाग भाग के खाने की कोशिश करोगे क्योंकि आपको उसका स्वाद आया है। तो अभी हम क्यों नहीं चल पा रहे माँ की ओर? क्योंकि अभी तक वास्तव में हमारे बीइंग को कोई स्वाद आया नहीं है। हमको उनके वास्तव में किसी एक स्तर के ऊपर कोई क्षीण सा एक लगा है। अदरवाइज तो चुंबक किस तरीके से जाती है उसको कोई फिलोसॉफी थोड़ी बताने की जरूरत है कि लोहे के नीचे चिपकना है, या लोहा को बताने की जरूरत है कि चुंबक के पास नहीं जाना है, या नदी को बताने की जरूरत है कि समुद्र के पास नहीं जाना है। ये तो उसको कहने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो सहज है उसके अंदर। तो ये सेटिस्फेक्शन, ये फीलिंग आप अगर दे सको, एंड समटाइम्स ऑफ एन इंटेंस जॉय, इतना आनंद आता है। आपको ये एक्ट देखते हो भाई, आप मूवी अगर देखते हो शिवाजी की, कि ये शौर्य या कोई ऐसे आत्म उत्सर्ग की जिसमें किसी ने अपना सब कुछ दे डाला, आप जब शिवी की कहानी पढ़ते हो, मतलब कौन सी चीज है आपको ये थोड़ी प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपना मांस काट काट के दे दो। ये मोरल थोड़ी कहानी का, मतलब कौन करेगा ये? अगर किसी से ये एक्सपेक्ट करे कि आप अपना जो मांस है वो काट काट के देना है, ये कहानी का मोरल है, तो ऐसा मोरल कोई नहीं है। और वो दान देने के दान के लिए अब कर्ण है, कर्ण जो देने की जो उसकी जो प्रवृत्ति है। एक बार कोई व्यक्ति गया युधिष्ठिर के पास, क्योंकि उनको ये दर्शाना था कि भी कर्ण में और युधिष्ठिर में क्या अंतर है अगर दानवीरता की बात करी जाए। तो उसके पास गया, साहब मेरे को लकड़ी की जरूरत है और मूसलाधार बारिश हो रही है, जैसे इस टाइम बाढ़ की स्थिति है। तो उसने हाथ जोड़ लिया, जी और कोई चीज तो ले जाओ, लकड़ी की व्यवस्था मैं कहां से करूं, अभी तो सूखी लकड़ी मिलेगी नहीं। वो व्यक्ति वापस आ गया और कर्ण के पास जाता है। कर्ण ने अपने महल के जो चंदन के दरवाजे थे सारे थे, जो लकड़ियां थी तोड़ ताड़ के कहता, महाराज जितनी चाहिए पूरी ले जाओ, पूरे महल में जितनी भी लकड़ी है सारी ले जाओ, कौन मना करता है, बस लकड़ी ही चाहिए आपको। तब दूसरे ने कहा, क्या लकड़ियां उसके पास युधिष्ठिर के पास नहीं थी? बहुत थी, लकड़ियों की कमी थोड़ी थी युधिष्ठिर के पास में, और कर्ण के पास कोई ज्यादा लकड़ियां थोड़ी थी। इनफैक्ट शायद कर्ण के पास तो कम थी, जितना बड़ा साम्राज्य युधिष्ठिर के पास था कर्ण के पास तो था ही नहीं उतना बड़ा, पर वो चीज उसके नहीं उपजती। तो ये जो इंटेंस जॉय है, जब हम ऐसा कोई कृत्य देखते हैं, मीराबाई की जब कहानी देखते हैं, या जो ऐसी चीजें देखते हैं, अंदर से कौन सी चीज हमारे फुलफिल होती है, कितना इंटेंस जॉय आता है उसमें, वो कोई भी बाहरी चीजों से वो जॉय की तुलना कर ही नहीं सकते। रामायण हम देखते हैं, राम की जो कितनी कितनी जो कथाएं हैं, शबरी की कथा है, क्या आनंद आता है, अपने को पता है कि क्या होने वाला है। कोई मूवी को 4 बार देखने से कोई आनंद थोड़ी बचता है, उसमें दूसरी बार में ही आनंद नहीं बचता। कौन सी कथा है जो आप उसको हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आनंद आता है, पर रामायण पढ़ते हैं रोज नया आनंद आता है उसके अंदर। तो ये इंटेंस जॉय है जो सप्ताह यज्ञ जो इसके करते हैं आपके भागवत का, लोग कितने कितने जीवन में बार सुन चुके अपने भागवत, फिर भी उतने उत्साह से, अरे वाह वो प्रसंग, मतलब इंतजार करते हैं कि वो प्रसंग आने वाला है, अब तो सुभद्रा का प्रसंग आने वाला है, अब तो ये वाला प्रसंग आने वाला है, अब कंस का कैसे उन्होंने उनको उसको मारा था ये सबको पता है, पर वो कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं भाई वो प्रसंग आएगा। क्योंकि इंटेंस जॉय है, आपकी आत्मा उसमें कितना इंटेंस जॉय लेती है। When he obeys this little very silent thing within him, तो जब आप उस साइलेंट चीज को, आप उस अपनी सत्ता के उस भाग को जब ओबे करते हो, तो ये इंटेंस जॉय की जो फीलिंग है वो आपको एक बार आ जाए कोई चीज में तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। विच विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट इज कॉन्ट्ररी टू इट, और तभी आप वास्तव में किसी को दूसरी चीज करने से रोक सकते हो। अब उसको बेचारे को उसमें जॉय आ ही नहीं रहा। अब किसी को श्री अरविंद की पढ़ने के अंदर एक लाइन पढ़ते ही उसको ये लगता है कि भी ये चीज क्या चल रही है, उसको उसमें जॉय आ ही नहीं रहा। अब उसको ये कहें भी तू ये कर, तो उसके लिए तो बेचारे के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इट इज ऑन एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस काइंड दैट टीचिंग में बी बेस्ड। तो टीचिंग जो है, अब तुम ये कल्पना करो या एक जस्ट विचार करो कि माँ बच्चे के साथ ये करने को कह रही है, तो कितना मूलभूत परिवर्तन है इवन टीचिंग के अंदर। और दूसरे करे किस तरीके से, और करे कौन, और ऐसे बच्चे मिले कहाँ। पहली बात तो पेरेंट्स कहाँ से आए जो वास्तव में चाहें कि उनके बच्चे को, वो तो कह रहे हैं जिसको पूरी तरीके से सफलता से मारने डाला गया हो। अभी तो सारी शिक्षा कोशिश ये है कि सफलता से मार डालें।
तो द चाइल्ड मस्ट बी गिवन द इम्प्रेशन दैट नथिंग कैन एंड्योर if it does not have within himself this true satisfaction which alone is permanent. तो ये अपना आज का टेक्स्ट हुआ। अब इसके ऊपर इस बारे में कोई बात हो, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा बातें हैं, इसको अगली बार अपने को इस बारे में चर्चा करनी है। रीडिंग तो अभी हो ही गई है अपनी। अब इसमें एक एक आप में जो जो बातें कोई है इस बारे में, जो तुरंत सरफेस में भी जो प्रश्न आते हैं उनको पहले तो अपन टैकल करते हैं। हाँ भैया है। हाँ, इसको जहां जहां से जिसके जिसके जो जो प्रश्न हैं, फिर इसको बहुत गहराई से, कई चीजें इसमें ऐसी हैं जो अपन ने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं है। अपने को कितना इजी से लगते हैं ये, पर फंडामेंटल परिवर्तन की बात है इसमें। इससे संबंधित जो जो प्रश्न है वो अपन पहले टैकल कर लेते हैं। हाँ भैया, तो में हमने पढ़ा कि it's not a question of giving a child a logical explanation, और आपने कि हम एक्सप्लेन कर नहीं पाते उसको। प्रसिद्ध दीदी क्लिक हो रहा है, प्रसिद्ध दीदी एको हो रहा है, आप म्यूट करो। नहीं, वो म्यूट करेगी तो उसकी सुनेगी कैसे? नहीं मैं म्यूट करूँ। तो मेरा ये पूछना था कि जब हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते हर कुछ, उसको एक्सपीरियंस करना है, तो फिर मतलब कैसे हम बता पाएं या कैसे समझाएं क्योंकि अभी हम जो सरफेस एरिया पे हमें तो कुछ बात समझ नहीं आती। जब एक्सप्लेन भी कोई नहीं कर पाएंगे तो हम जो सरफेस में वो समझे कैसे? हाँ, तो इसका प्रश्न ये है कि फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन बच्चे को समझ में नहीं आता और हम किस तरीके से बच्चे को समझाएंगे, यही कहना चाह रही है? हाँ भैया। हाँ, पर ये माँ हर जने की बात नहीं कर रही कि हर जना उसको फिलोसॉफिकली समझाओ या कैसे समझाओ। पहले तो इसके लिए जो व्यक्ति समझाने वाला है वो खुद तो वहां हो। कोई समझाए कौन और किसको समझाए? पहले हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति की, इसीलिए जो एजुकेशन सेंटर अपन ने यहाँ खोल रखा है या माँ ने जो पौंडीचेरी में खोला था, उसका आधार तो यही है। इसीलिए मैंने कहा ये एक मूलभूत बात है। जैसे धर्म का बीच में नाम आया तो धर्म के बारे में हमको समझना जरूरी है। बहुत बहुत इश्यूज इसमें ऐसे आ गए जो कभी हमने सुने नहीं होंगे इस तरीके से। तो बच्चे को ये दे कौन भाई? माँ की चेतना जो है उससे टच होते ही व्यक्ति को एक तुरंत एक शौक, आंतरिक शौक महसूस ऐसा होता था कि अरे ये जगदम्बा है। या कैसे आपको महसूस होता होगा एक क्षण के अंदर कि ये मेरे गुरु हैं। कौन सी चीज है जो आपको मतलब फिजिकली, ऐसा क्या आपको फिजिकली तो कुछ पता नहीं चलता ना आपको क्या आंतरिक एक आघात, एक शौक, इस तरीके का झटका लगता है, आप पहचान जाते हो ये मेरे गुरु हैं। और आप पूरा जीवन और जो एक्चुअल में उनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब अपना सब कुछ, अपना पूरा व्यक्तित्व, जो अपना अहम या जो भी कुछ वो अपना मानता है, अपना सोच विचार का तरीका, अपना पूरा जीवन, कैसे कैसे लोग माँ के पास, श्री अरविंद के पास आए थे। वो क्या कोई अक्षम लोग थोड़ी थे इसलिए आए थे। कौन सी चीज है जो उनको तुरंत आंतरिक रूप से एक तुरंत पहचान जाती है? वो है टीचिंग। वो फीलिंग देनी है बच्चे को। तो ये तो डिमांड बहुत अलग तरीके की हो गई। आप कैसे उस चीज को, मेरे हाथ में एक अच्छा कोई व्यंजन हो तो मैं उसको स्वादिष्ट चखाऊं। मेरे पास व्यंजन नहीं है, मेरे पास, मेरे हाथ में तो बॉम्ब है, मैं उसके मुंह में कैसे दे सकता हूं? मेरे हाथ में अभी कुछ है ही नहीं। तो शिक्षा शुरू कहां से हो? इसलिए एक शिक्षा पद्धति जिसमें बच्चे को एक हम ये कन्वे कर सकें कि ऐसी एक चेतना है। अब इसके लिए पहले तो टीचर कैसा होना चाहिए? तो जो अपनी आत्मा से जुड़ा हो वो टीचर होना चाहिए। जिसमें ये चेतना हो वही टीचर हो सकता है। इसलिए यहां अपन ने कोई भी, चाहे कैसे भी लोग हो, टीचर कोई दूसरा एंटर नहीं करवाया, क्योंकि
इसमें तो प्योरिटी के बिना तो, अगर थोड़े भी रूप में उसके ये हो कि मेरे को पैसे के कारण काम करना है, तो कभी भी ये शिक्षा दी जा सकती है? ये बताओ, ये तो कभी दी नहीं जा सकती। दूसरे, अगर आपके ये हो कि इसमें पेरेंट्स राजी नहीं हो, तो आपके पास बच्चे कैसे आए स्कूल में? अब पहले तो पेरेंट्स को भी ये पता नहीं हो कि पेरेंट्स के क्या क्या मन में होती है वो चीजें, वो कभी तो, ये तो माँ ने पहले पेज के ऊपर ही कह दिया कि नेचुरली इफ ए चाइल्ड गेट्स ए डिजास्ट्रस एजुकेशन इट विल ट्राई एवर हार्डर। वो तो हमेशा कोशिश क्या करेगा, और समाज भी उसको क्या कह देगा, प्रैक्टिकल बातें कर, ये जो तू बातें कर रहा है ये प्रैक्टिकल नहीं है, इससे थोड़ी कोई पेट भरता है, पेट तो काम करने से भरेगा। टू एक्सटिंग्विश विद इन इट सेल्फ दिस लिटिल ट्रू थिंग, अगर उसमें किसी में बच भी जाएगी, मतलब उन्होंने तो स्कूल में भी कोशिश कर ली, सारी कोशिश कर ली, परिवार ने कोशिश कर ली, और खुदा न खास्ता उसमें कोई थोड़ी सी बच भी गई, तो सब कोशिश करेंगे उसको कि भाई, और खुद बच्चा भी असमंजस में रहेगा कि ये क्या है। तो जो तू प्रश्न कर रही है वो उस तरीके से फ्रेम नहीं कर सकते कि हम उसको कैसे समझाएं, उसके लिए तो अपन प्रयास कर ही रहे हैं। उसी की एस्पिरेशन है कि हम उस चेतना में कैसे जुड़ें, पहले तो हम जुड़ें, और उसी के लिए बच्चा, क्योंकि एक ऐसी अवस्था में होता है जहां उसके फॉर्मेशन होना ईजी है, इसलिए बच्चे की वो बोल रही है, क्योंकि सहज रूप से है, क्योंकि बाद में तो हमारा मानसिक विकास होने के बाद में तो ऑलरेडी हमारे फ्रेमवर्क्स या ऐसे ढांचे बन चुके होते हैं कि पहले तो उनको तोड़ने की मेहनत करो। मतलब आपने एक ऑलरेडी एक ऐसा ढांचा बना दिया, उसमें नया निर्माण करने के लिए, हालांकि उसमें आपको अब भी एस्पिरेशन जागृत होती है, तो कभी भी लेट नहीं है उसके बारे में, पर माँ जो कह रही है वो बहुत मूलभूत बात कह रही है। तुम इसको समझ पा रहे हो कि बच्चे के लिए एजुकेशन एक दुर्लभ चीज हो गई ना, फिर उपलब्ध कहाँ हुई ये बताओ मेरे को, तो फिर स्थान कहाँ है उपलब्ध होने का? एजुकेशन तो है ही नहीं। पहली बात तो टीचर्स है वो नहीं आए, और टीचर है उसके लिए भी एक पूरा फ्रेमवर्क होने की आवश्यकता है। अब टीचर हो तो स्टूडेंट कहाँ से आए, स्टूडेंट जिन परिवारों से आए वो परिवार कैसे हो, तो ये तो एक असंभव सी चीज हो गई। इसीलिए माँ ने जो आश्रम की जो संकल्पना करी, एजुकेशन सेंटर की जो उन्होंने एक विजन जो लिया, वो इसीलिए लिया। उन्होंने कहा तब ऐसे तो एजुकेशन हो ही नहीं सकती। तो यही तो इस एजुकेशन का आधार है। जब आप ऐसे व्यक्ति के पास हो जो आपसे सच्चा प्यार करता है, सच्चा प्यार वो तब कर सकता है जब आपसे नहीं, वो माँ से प्यार करता है, तब ऑटोमेटिकली वो सच्चा प्यार करेगा भाई। उससे आपको और कोई दूसरी चीज बह ही नहीं सकती। वो जब उस चीज से जुड़ा हुआ है तो उसमें तो खुशबू ही खुशबू आएगी। माँ जो है आपको डांटती है तो भी आपके कल्याण के लिए ही डांट रही है। आपने एक दिमाग में बना रखा है कि वो डांट रही है तब तो एक ऐसा है, जब वो मार रही है तब ऐसा है। वो तो चीरा लगाएगी तो भी आपके कल्याण के लिए लगाएगी, वो जो भी करेगी आपके भले के लिए करेगी। तो जो माँ से जुड़ा हुआ है वो आपको मैथ्स पढ़ा रहा है तो भी आपका कल्याण कर रहा है, क्योंकि वो कहने सुनने से ये चीजें कभी नहीं हो सकती। वो तो खुशबू के पास बैठे हो तो आप में भी खुशबू आने लगेगी, आप प्रेम के वातावरण में हो आप में भी प्रेम बहने लगेगा। ये कोई कहने सुनने से अगर होती तो सारी पुस्तकें भरी पड़ी है, फिर पूरे धरती के ऊपर दिखता तो कुछ और है अपने को, तो होता क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो प्रक्रिया अंदर से बाहर से नहीं है। ये प्रक्रिया ये फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन से नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने कहा इसके इम्प्लीकेशन बहुत गंभीर इम्प्लीकेशन है कि हम इसको प्रैक्टिकल में करें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले तो ऐसे टीचर हो, ऐसा स्थान हो, पहले तो अपने आप को पूर्ण रूप से माँ को दे देने की वो हो, जिसमें ये डर न हो कि मेरे जीवन में क्या होगा। भाई कोई आश्रम में आ गया, अगर उसके सारे दिन ये भय लग रहा है, जिसने माँ को समर्पित कर दिया, और फिर ये भय लग रहा है कि मेरे पता नहीं क्या होगा, मेरे तो बैंक में बैलेंस ही नहीं है, कल मैं बीमार हो जाऊंगा और आश्रम वाले मेरे को बाहर फेंक देंगे तो क्या होगा। अब मेरे को बताओ वो एजुकेशन करवाएगा या मतलब क्या करेगा? वो तो भयभीत बैठा रहेगा सारे दिन। तो ऐसी एजुकेशन शुरू कैसे हो? तुम इसको आगे तक ले जाके देखो एक तरीके से, मतलब इसको अगर मैं शुरू करूं, तुम जस्ट एक माइंड में सब्जेक्टिवली विजुअलाइज तो करो इसको, कि कोई अगर इसको प्रयास करे तो उसमें क्या क्या इश्यूज आएंगे। ये तो असंभव सी चीज है, शुरू हो ही नहीं सकती जब तक माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास न हो, पूरी श्रद्धा नहीं हो, क्योंकि वो तो पहले दिन ही चेक हो जाएगी आपकी श्रद्धा। आप भवन का निर्माण कर सकते हो, आप एक हॉल बना सकते हो, आप एक कमिटी बना सकते हो, आप एक स्टडी सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हो,
पर जैसी बात आती है माँ मैं अपने आप को देता हूं, इसमें तो इतनी तामझाम की जरूरत नहीं है ना, वो नहीं होता। माँ मैं आपको समर्पित करता हूं, ये करना तो बहुत भारी काम है, और तब वो चीज फ्लो करे। अब वो कहते हैं ये पहेली कैसे जी, ये डब्बा कैसे खुलेगा, इसकी विधि इस डब्बे के अंदर है, इस डब्बे को खोलने की विधि इस डब्बे के अंदर है। ये तो बड़ी अजीब बात है। तो ये अजीब बात ऐसी ही है, ये ऐसे नहीं फिलोसॉफिकली आप बता सकते उसको। तो इसीलिए माँ कहती है जिसके अंदर भी वो अंदर है प्रकाश, वो दूसरे को प्रकाश दे सकता है। दूसरा बेचारा खुद अंधकार में हो, भी मेरे हाथ अगर गंदगी से सने हुए हो, मैं कदूँ मैं साफ कर दूं इसको, कैसे कर दूं मैं साफ, नहीं कर सकता मैं। इसलिए इन शब्दों में, खुद में जिन शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, देखो ये कितनी सारी चीजों को हमारे को रेफर कर रहे हैं ना, इसको मजबूर कर रहे हैं वो झाड़ने के लिए कि ये तो चीज अलग है, ये ऐसे नहीं है। और कोई प्रश्न? तो भैया ये जो ट्रूथ जब परसीव करेंगे तो वो एक प्रोग्रेसिव ट्रूथ होगा ना? हाँ बिल्कुल। तो मतलब आज जो हमको सही लग रहा है वो कल किसी पॉइंट पे गलत भी लग सकता है। लगेगा ही, लग सकता नहीं, लगेगा। अच्छा, तो इसका मतलब जो सत्य मुझे लग रहा है वो दूसरों के लिए असत्य है? ये नहीं कोई जरूरी है। तो ट्रूथ मेरा सबके लिए, गाइडेंस तो मेरा ही ट्रूथ, मेरी आंख तो मेरे को ही गाइड कर रही है, किसी दूसरे को थोड़ी गाइड कर रही है। तो फिर सबका ट्रूथ अलग अलग है इसका मतलब? फंडामेंटल ट्रूथ एक है, इसलिए आप जुड़ सकते हो। हार्ट के ऊपर जाते ही एक हो जाते हो, शरीर में अलग हो। शरीर के ऊपर थोड़ी आप कहते हो हम एकजुट हैं। अरे शरीर तो एक अलग अलग रहता है आपका, कितनी भी भावनाएं आपकी बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो तो भी दो जने तो होते ही हो। और भावना के ऊपर जाती प्रगाढ़ता इतनी ज्यादा हो जाती है, तो जैसे ही आप ऊपर जाते जाते हो सत्य आपका जो है वो मिलता जाता है। आप वही आंतरिक तो रूप फिर। से मिल सकते हो, बाहरी रूप से नहीं मिल सकते हो। इसीलिए ईगो के ऊपर तो इतने सारे विभेद हैं ही, ईगो की चेतना के ऊपर तो दिक्कत है। मैं खा जाऊं भी, झगड़े किस चीज के हैं, मैं के ऊपर आते ही झगड़ा है सारा का सारा। हाँ तो भैया फिर तो ये मतलब माँ जो बोल रही हैं कि बच्चे को सिखाने की बात है, तो ये तो खुद हर मोमेंट एक जीने की बात होगी ना, क्योंकि हर मोमेंट में ये डिसीजन आता है, एक चॉइस की जो आप बात कर रहे थे। माँ किसी कॉन्टेक्स्ट में ये कह रही हैं, हाँ हाँ। वो अगर किसी टीचर को कह रही होंगी, उसको गाइडेंस दे रही होंगी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो गाइडेंस के थ्रू हम एक तो इसमें ये देख सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, क्योंकि हम तो उसमें हैं भाई। हम अपनी जो ये ट्रू गाइड है, वो तो हमने जो शिक्षा है उसमें और सारा परिवेश है, वो तो कोशिश उसकी किसी भी प्रकार ये है कि इसको मार डालें सफल रूप से, कि कहीं ये गलती से ये नहीं कह दे। जैसे वो एक कहानी है वैली ऑफ द ब्लाइंड, उसमें एक आंख वाला पहुंच जाता है। अब वो वैली ऑफ द ब्लाइंड के अंदर, क्योंकि वो सारों की आंखें नहीं होती, ये ब्लाइंड की घाटी है वो तो अब वो तेरे आंख नहीं होगी तो आराम से वो अपना जीवन उस तरीके से जी रहे हैं। तो वो काम करने का समय उन्हें रात को चुन लिया, क्योंकि दिन में तो सूरज होता है, तो वो कहते हैं धूप, यहाँ गर्मी होती है, धूप का और का तो उनको सेंस नहीं है। तो उनका अपने तो अब जो है ना, जो ठंडा टाइम होता है उस टाइम काम कर लिया करेंगे, और जो गर्म टाइम होता है उस टाइम सो जाया करेंगे। वहां गलती से कोई एक आंख वाला पहुंच गया, अब बेचारे का सारी तो उसके तो दुनिया उलट गई। भाई वो रात को काम करें, अब वो लड़खड़ा के चले, क्योंकि वो तो अंधेरे के अंदर काम करें, वो लड़खड़ाए। तो बड़ी मुश्किल से वो ब्लाइंड्स है, उन्होंने कहा भी इसके कोई ना कोई बेचारे के दिक्कत है, इसके कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये असमर्थ है। तो जो उनमें वो समझदार थे, उन्होंने पता लगाया कि इसके दो कोई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण इसके दिक्कत हो रही है ज्यादा। तो सारों ने मिलके उसकी वो दोनों आंखें फोड़ डाली। तो फिर बाद में धीरे धीरे उसको अपने तौर तरीके सिखाए, तो वो भी ब्लाइंड बना के उसको फिर बाद में अपने तौर तरीके सिखाए, तो वो नॉर्मल हुआ उनके तरीके से। तो अगर बच्चे में कोई थोड़ी सी भी वो इंकलिंग है यहाँ से, और वो उसको महसूस होता है कोई अंदर से फ्लेम है, और वो कहता है समाज को कि मेरे अंदर ये फ्लेम है या मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं भी इसको फोड़ो, कोई बेचारे की दिक्कत है इसके, इसकी हेल्प करो। तो वो तो हेल्प करते हैं, वो कोई इलविल से नहीं करते। वो जो आपकी फ्लेम पे ठंडा पानी डालते हैं वो गुडविल से डालते हैं, इलविल से, क्योंकि वो उनको लगता है भी अपने तौर तरीके तो सही है दुनिया को देखने के, तो जल्दी से आंखें फोड़ो जो ये भी ठीक होए, नॉर्मल होए। और
अभी के लिए तो भैया बस यही, फिर इसको पढ़ेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सोचेंगे तो शायद इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा गंभीर हैं। जैसे मैंने ये कहा कि बच्चे को कैसे दो, तुम जस्ट साइकोलॉजिकली इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, एक विजुअलाइज तो करो कि तुम ये शुरू कैसे करो और उसमें क्या क्या व्यवधान आएंगे। भैया आपने टीचर रखे, पैसे के कारण रखे नहीं आपने, अब वो टीचर दूसरे दिन उपद्रव करें तो आप दूसरी स्कूल में तो कहते तेरी तनख्वाह काट लेंगे। साधक को क्या कहोगे कि तेरी तनख्वाह काट लेंगे, वो तो तनख्वाह पे है ही नहीं, तो बेचारे की क्या काट लोगे तुम, भाई क्या काटोगे उसका ये तो बताओ। तो इसलिए जब तुम ऐसी एक संस्था चलाना शुरू करते हो या एक ऐसा अभियान शुरू करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके लिए आपके पास क्या क्या साधन होने जरूरी हैं कि आप करो कैसे। आप कहो कि हम उसको ये एक्सप्लेन करेंगे कि डीपर कोई ऐसा सेटिस्फेक्शन है, आप कैसे बताओ, ये आप खुद के पास ही वो नहीं है तो आप दो कैसे, ये जो चीज मेरे पास है नहीं मैं दूं कैसे वो। अब मैं कह दूं कि मैं ताजमहल स्नेहा के नाम कर देता हूं, मैं कैसे कर दूं स्नेहा के नाम ताजमहल, मैं बैठा मैं रजिस्ट्री पे साइन कर दूं ताजमहल, मेरा है ही नहीं ताजमहल, कर दूं कैसे मैं स्नेहा का, ये बताओ। तो पहले तो अगर मैं इवन ये भी कह दूं कि मां मैं तेरा हूं, मैं हूं ही नहीं अभी, भैया एक आंतरिक पार्ट है, अभी तो पता नहीं किस किस चीज को मैं बिलोंग कर रहा हूं। तो इसलिए बच्चे को अगर मैं देना चाहूं तो पहले तो खुद तो हो, अभी देने नहीं ले, और ये इस तरीके से नहीं दिया जा सकता, आदमी सोच के नहीं देता कभी भी किसी को। माँ बैठी है तो सोच के थोड़ी चेतना देती है कि मैं इसको चेतना दूं और इसको नहीं दूं, या दीपक है वो बैठा है वो सोच के देता है कि इसको प्रकाश दूं और इसको प्रकाश नहीं दूं, ऐसा नहीं है। भाई कहने के लिए कोई तो शब्द काम में लेने पड़ेंगे, इन्होंने तो सारी चीज कह दी, कुछ तो आप काम में लोगे, शब्द तो काम में लेने ही पड़ेंगे, बिना शब्दों तो आप कैसे कहोगे, मजबूरी है। पर उसके इम्प्लीकेशन तो हमको समझने की जरूरत है भी कैसे, नहीं तो अब ये सारी बातें माता जी फिर तो एक ही टॉपिक एक्सप्लेन करे बेचारी, और तो करे क्या फिर बाद में, या श्री अरविंद कोई एक ही बात लिखे, एक सेंटेंस लिखे, फिर तो उसके ऊपर व्याख्या ही करने शुरू कर दे, और कितनी भी कर लो व्याख्या से थोड़ी कोई समझ में आता है। तो ये इसका चिंतन करो। एक तो इसमें प्रश्न अपना ये होना चाहिए कि ये ट्रू थिंग जो है उसके हम संपर्क में कैसे आए उस ट्रू गाइड के। ये हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे को तो छोड़ो भाई, तुम्हारी तो कोई मॉरल जिम्मेदारी भी नहीं है कि किसी बच्चे को समझाना है, तुम्हारा तो फील्ड भी नहीं है ये कि किसी बच्चे को समझाना है। मेरा तो फील्ड हो सकता है, मैं यहाँ बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, पर जिसका फील्ड ही नहीं है अब उसको कहो बच्चे को समझाओ, तो कोई मोहल्ले वाले बच्चों को थोड़ी जाके समझाना वो शुरू कर देगा। तो सबसे पहले तो कि ये ट्रू गाइड और इनर गाइड है क्या, पहले तो इसकी अपने ये बात करो। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं वो ये नोट कर लो, और इसके ऊपर तुम एक तो अपना अध्ययन करना शुरू करो इस बारे में कि रोल ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन का रोल क्या है। जब रिलीजन का शब्द आया है इसमें, क्योंकि पहले हमको एक एक शब्द के पीछे पीछे क्या है रिलीजन का पता ही नहीं कि रिलीजन होता क्या, धर्म का मतलब क्या हुआ। तो रिलीजन की रोल ऑफ रिलीजन क्या है, और भारतीय धर्म और दूसरे जितने भी धर्म हैं वास्तव में उनमें अंतर क्या है, क्योंकि ये एक बेसिक समस्या है कि सब में ये रहती है। जब ये माँ और श्री अरविंद धर्म की बात करते हैं तो दूसरे भारतीय धर्म को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, पर ये हमको ये पता होना चाहिए कि माता जी और श्री अरविंद जब बात करते हैं वो कहे किस शेड में रहे हैं, उसका हमको पता होना जरूरी है, ये हमको पता करना है एक तो। अच्छा, अब इसके अंदर ट्रू गाइड तो हमारे कौन कौन से हिस्से हैं। एक तो ये विजुअलाइज करो कि कुछ हिस्सों के बारे में हम बहुत सचेतन हैं, मतलब अपने शरीर, हालांकि शरीर किस तरीके से क्रिया करता है उस बारे में भी हम पूरे सचेतन नहीं है। दूसरे हमारे जो भावनाएं वगैरह जगती हैं वो, कुछ हमारे खाली विचार जो आते हैं उस बारे में हम सचेतन हैं, हमारी एस्पिरेशन है उस बारे में हम सचेतन है। तो किन किन भागों के बारे में हम सचेतन हैं। अब किसी भाग को, एक भाग को अगर प्रधानता दी जाए, जैसे आज मटेरियल सिविलाइजेशन है बार यूरोप की, वो खाली अपने सुख सुविधा और अपने मैं को, कि अपना जो वाइटलिस्टिक टेंडेंसीज है उसको पूरी छूट दी जाए तो कैसी सभ्यता होगी। आपकी आंतरिक चीज को अगर चांस दिया जाए तो कैसी सभ्यता होगी, इस बारे में तुमको चिंतन करना है। अब ये कल्टीवेट करें, कैसे करें, ये जो फीलिंग है कंफर्ट की, मतलब कैसे दें कंफर्ट की फीलिंग, आप कैसे किसी को कंफर्ट की फीलिंग दे सकते हो, पहले तो ये तो सोचो
कि आप किसी के पास जाओ और उसको कंफर्टेबल महसूस करवाओ। कैसे करवाओ भाई? किसी के शरीर में दर्द हो रहा है तो आप उसका थोड़ा दबाओ, कोई बाम वगैरह लगाओ। अब बेचारे को कोई पीड़ा हो रही है, मतलब आप उसको कैसे सांत्वना दो? और आत्मा तो हमेशा ही यहाँ आके बड़ी पीड़ा के अंदर है, तो उसको कैसे सांत्वना दो? आपकी आत्मा तो, क्योंकि अभी संपर्क नहीं है इसलिए अपन शांति से बैठे हैं। अगर उसकी पुकार या उसकी रोना अपने को पीछे सुन जाए कि कितने तकलीफ में वो बेचारी रहती है, क्योंकि अपन जो उसका गुण धर्म है उससे अलग अगर काम करते हैं तो उसको सेटिस्फेक्शन कैसे दें, उसके टच में आए कैसे, क्या करें? तो ये हमको समझने की कोशिश करनी है। एक इसमें सूत्र ये है कि जितना ही हम खुद के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, खुद की लोअर चीज़ों को असर्ट करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम तकलीफ पाते हैं। जितना ग्रीड है, जितने मेरी लस्ट्स हैं, मेरा ईगो है, इन चीज़ों को जितना ही प्रोमिनेंस में लाने की कोशिश करते हैं, असर्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, वही जो शुरू में कि जो हमारी सत्ता के सत्य से विपरीत होती हैं, अगर ऐसा करें तो उसको तकलीफ होती है। इस बारे में चर्चा तो क्या, तुम इसका चिंतन करो। मैं ये चाहता हूं कि चर्चा का अगली बार टाइम अगर ज़्यादा मिल सके वो तब मिल सकता है जब तुम लिख के टाइप करके अगर पहले भेजो, मेरे को ईमेल से भेज दो, किसी भी चीज़ से भेज दो, तो मैं तुमको सही करके, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदान प्रदान होगा और तुम उसको पूरा अपने एक फाइल बना के रख सकते हो वो पेपर्स को, या पेपर्स को नहीं रखो तो ईमेल तो सबका होगा या व्हाट्सएप होगा, जो भी होगा, मैं तुम्हारी फाइल को खुद उसको सही करके उसको वापस भेज सकता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम अपना अब इसमें, क्योंकि फोकस करना पड़ेगा, अगर लिखोगे तो माइंड की एनर्जीज को फोकस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये मूलभूत प्रश्न हैं, ये करने ही पड़ेंगे भी, अपने आप से करने पड़ेंगे ना। ये करना शुरू करो। और इस बारे में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, इस बारे में जो भी लिखना चाहे, जो वास्तव में चाहता है कि ये हमारे अंदर जाए, वो लिखो। और लिख के मेरे को ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअली भेज सकते हो और मैं इंडिविजुअली तुमको उसको पूरे में संशोधन करके वापस भेज दूंगा। ये मत सोचना कि मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट या टाइम जाएगा। ये ऑलरेडी अपन एक काम शुरू कर रहे हैं तो उसको करना इसके प्रक्रिया में है। तो इससे अभी अपन मेरे ख्याल से इसको कंक्लूड करते, बंद करें इसको, या और कोई बात है? किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? जीतू भैया, विनोद अंकल, विनीता। कौन कौन है आज? विनीता, मारोदिया अंकल, जीतू भैया, अपराजिता दीदी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। किशोर भैया थोड़ी देर के लिए थे लेकिन शायद वो निकल गए, उनका शायद कोई नेटवर्क इशू होगा। हाँ कोई नहीं, ठीक है। बस ये एटलीस्ट कम से कम भी इतने जने थे तो ये पता रहे अपने को। ठीक है, तो ये तुम इस बारे में रोज एक समय निर्धारित कर लो, सुबह उठ के का निर्धारित कर लो, जब इस बारे में तुम चिंतन कर सको, इस बारे में और भी कोई माँ और श्री अरविंद की पढ़ सको, इस बारे में और भी पूरा कर सको, तो ये करो। लिख के मेरे को भेजो इसको, क्योंकि चर्चा में तो फिर आधी घंटा पौन घंटा तो अपना, अगर कोई पॉइंटेड क्वेश्चन हो वो कर सकते हैं अपन, अदरवाइज तो जो भी नया टॉपिक है वो तो फिर अब एक थ्रेड अपना नेक्स्ट टाइम के ऊपर चला जाएगा ना। ये तो अपन ये चाहते हैं कि जितना लाभ इसका हो सके वो सारों को उतना लाभ तो मिले एटलीस्ट। अगर इसमें इसको और बेटर कर सकते हैं कोई तरीके से तो वो सजेशंस भी मेरे को भेज सकते हो। ठीक है, बंद करें? हाँ भाई, ठीक है। जय श्री पंकज एंड ऑल।